Hello guys, welcome to Alphabetize. I am Jyoti Ranjan. Friends, today we will have a brief discussion about the Sociology Paper 1 question of 2020 UPSC Civil Services main exam. And before that, friends, please subscribe our channel and join us in Telegram. Please practice this question paper before your notification will out. Your UPSC 2021 notification will 10th of February in the next month. So after that you will not have enough time to practice this question paper. So this is the time to practice the question paper, and after the notification will out you will get yourself busy in preparing for the preliminary exam. So please friends, अभी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 1 एंड सेक्शन ए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम this section, okay। The first question, that is your question number 1A, is from this section, and it is talking about intellectual forces. So you can quote about enlightenment period में जो intellectual personality थे, ठीक है, that is your intellectual forces, जो intellectual personality थे, जो मैंने नाम बताया थे, डार्विन, मोंटेस्क, डर्कहेम, and about their findings, okay। So the next question is sociology is a value free science? Discuss. So see friends, this question is from chapter 2. The first one is what is science, the second one is your is sociology a science, the third one is sociology a value free science? Question number 1C, methodology is a system of rules, principles and procedures which forms scientific investigation. Comment, okay। And this is from chapter 2, major theoretical strands of research methodology. Also the last part, see, the last part is your non positivist methodology, okay। तो ये chapter 2 से है। And then our next question is ideal types, okay। Ideal types of Max Weber are mental constructs, they do not correspond to the reality, give your views। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है आइडियल टाइप्स को लेके, और आपको अपना ओपिनियन, अपना व्यू देना है, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम योर थिंकर पार्ट, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 4 एंड फ्रॉम सेक्शन सी, ओके। सी फ्रेंड्स, हियर चैप्टर 4 योर सोशल थिंकर्स एंड फ्रॉम सेक्शन सी मैक्स वेबर आइडियल टाइप। फ्रेंड्स, ये जो थिंकर पार्ट है वो बेस है आपका सोशियोलॉजी पेपर 1 का, या पूरा का पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बेस है ये थिंकर पार्ट, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1E, that is analyze the relevance of pattern variables in the study of social changes। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा जूम करके देखिएगा, ठीक है। एंड ये जो मार्क किया गया है क्वेश्चन, ये मैंने खुद मार्क किया है चैप्टर वाइज, एंड जो हाईलाइट किया है, प्लीज़ गेट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम में मैं पोस्ट कर दूंगा इसको। चैप्टर 4D, ओके, 4D पैटर्न वेरिएबल्स, ये देखिए टैलकट, पार्सन, and the last section is your pattern variables। Next question is question number 2A, and it says what are the reactions of R.K. Morton to functionalism of social anthropologist, bring out the limitation of latent functions। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो थिंकर पार्ट है, देखिए बैक टू बैक कितने क्वेश्चन है यहाँ से, 1D, 1E एंड सेकेंड ए। क्वेश्चन नंबर 2A, तीनों के 3 क्वेश्चन 10, 10 और 20। यहाँ से 40 मार्क्स के क्वेश्चन है फ्रॉम थिंकर चैप्टर, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज थिंकर जो पार्ट है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ब्लू बुक है हेरालम्बोस का, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। एंड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2A, ये आपका चैप्टर नंबर 4 एंड सेक्शन ई से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 सेक्शन ई से ये कहाँ से है, देखिए फंक्शन देख रहे हो, मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन, ठीक है, ये यहीं से है, तो उसको यहाँ से आपको लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इलाबोरेटली, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2B, हाउ आर हायरार्की एंड एक्सक्लूजन द मेजर इम्पेडिमेंट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। चैप्टर नंबर 5A, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है चैप्टर 5A, और यहाँ भी देखिए चैप्टर 5A, ये जो पार्ट है ये वाला हायरार्की एंड एक्सक्लूजन। चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो आप सोशियोलॉजिस्ट व्यू डायग्राम्स इसमें दोगे ही, बट चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा जो करंट एग्जाम्पल्स है, जो करंट अफेयर्स पार्ट है, इसमें भी आपको पुट करना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2C,
that is explain democracy as an order of society. What are the factors preventing people's participation in politics? Okay, so this question is from your chapter 7. यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी एंड एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी से रिलेटेड है, तो यहाँ से आपको रिलेट करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3A एंड इट सेज कैपिटलिज्म हैज ब्रॉट इंक्रीजिंग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क इन सोसाइटी. Substantiate your answer. Okay, so this question friends is from chapter number 6 and इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इसमें दो चीज़ें, the first one is your capitalism and the second one is your informalization of work. Okay, so ये कहाँ है चैप्टर नंबर 6 पे मैं आपको दिखा देता हूँ. ये दोनों के दोनों कैपिटलिज्म एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क ये कहाँ पे है चैप्टर नंबर 6. देखिए, फर्स्ट वन इज योर कैपिटलिस्ट सोसाइटी and the second one is your formal and informal organization of work. Okay, so यहाँ से ये क्वेश्चन है रिलेट करके और आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा विथ सोशियोलॉजिस्ट व्यू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर critically analyze Durkheim's view of elementary forms of religious life and role of religion. Also discuss the consequences of religious revivalism. ठीक है फ्रेंड्स, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. इलेबोरेटली हमें लिखना पड़ेगा. जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, जो है आपका क्रिटिकली एनालाइज डर्कहेम्स व्यू ऑफ एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रोल ऑफ रिलीजन, ये हम ये बोल सकते हैं कि थिंकर पार्ट से है एंड दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 4 सेक्शन बी. मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे रिलीजन एंड सोसाइटी है, बट द सेकेंड पार्ट, ठीक है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज योर ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 8. तो यहाँ पे कंबाइन कर दिया है दोनों को और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के साथ ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को रिलेट करके एग्जाम्पल के साथ लिखना है. एंड सेकेंड पार्ट कहाँ पे है रिलीजियस रिवाइवलिज्म, मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर 8 में. ठीक है, एंड ये जो लास्ट पार्ट है रिलीजियस रिवाइवलिज्म ये यहाँ से है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3C इज डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अक्रॉस रीजन मैरिज और किनशिप सिस्टम इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए. ये क्वेश्चन जो है ना, ये चेंजेस इन फैमिली एंड मैरिज टाइप का हो गया. तो क्या क्या चेंजेस आया है, ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक, अक्रॉस रीजन मीन्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. ठीक है, लेट सपोज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया. 9 से, और हम देखते हैं ये कहाँ से, लास्ट वाला पार्ट देखिए, कंटेम्पोररी ट्रेंड्स. अक्रॉस रीजन मैरिज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, जो मैरिज चल रहा है आजकल. ठीक है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑन किनशिप सिस्टम इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 4A दैट इज ह्यूमैनिटी एट द मर्सी ऑफ नेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमेंट इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन. ठीक है, जो करंट सिचुएशन दिया है चैप्टर 10 है आपका सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी. एंड हमारा जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ से है, देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज. ठीक है, ध्यान से देखिए इसको. क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है, ये आया है हमारा चैप्टर नंबर 10E सेक्शन से. ठीक है, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल देखें. क्वेश्चन नंबर 4B अकॉर्डिंग टू डर्कहेम द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म एंड वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, एक तो एजुकेशन पार्ट हो गया, एजुकेशन कैसे सोशल चेंज में हेल्प करता है, एंड दूसरा जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज़ योर द व्यू ऑफ डर्कहेम. ठीक है, तो डर्कहेम का जो व्यू वो ये था कि द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म एंड वैल्यू. देखिए ये सोशियोलॉजिस्ट व्यू हो गया एक टाइप का, लेकिन हमें जो लिखना है देखिए चैप्टर 10 से एंड डर्कहेम से स्टेटमेंट से को दोनों को रिलेट करके लिखना है. और सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5A इज in the context of globalization has the scope of sociology been changing in India. ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिए स्ट्रेट आते हैं चैप्टर 1 को. has the scope of sociology been changing in India in the context of globalization. तो फर्स्ट थिंग इज आवर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, यहाँ आइए चैप्टर नंबर 1 पे देखिए, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बीन चेंजिंग इन इंडिया. तो ये आपको चैप्टर 1
से रिलेट करके लिखना पड़ेगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च। वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये देखिए हाइपोथेसिस, चैप्टर नंबर 3 ईयर रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस, एंड our question is from this section. Okay, this part, hypothesis. 5C, that is what are the problems in observing social facts in Durkheim's view। देखिए यहाँ पे डर्कहिम का ही 3-4 क्वेश्चन आ गया है, तो सोशियोलॉजिकल थिंकर जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरह से पढ़िएगा। अगर आप सोशियोलॉजी में मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो सोशियोलॉजिकल थिंकर पार्ट में आप मास्टर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 सेक्शन बी से, ठीक है, ये देखिए चैप्टर नंबर 4 सेक्शन बी डर्कहिम का है, सोशल फैक्ट इज, ये देखिए और सेकंड वाला पोर्शन सोशल फैक्ट। देन द क्वेश्चन नंबर 5D, स्टेट द रीजंस फॉर द वेरियस रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो चीज़ है देखो लास्ट वाला जो पोर्शन है रिलीजियन इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, इन प्री मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें पूछा है इन प्री मॉडर्न सोसाइटी, बट इस यहाँ जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है मॉडर्न सोसाइटी। तो हमें क्या करना है, जो सेक्शन ए है यहाँ का चैप्टर 8 का जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये दोनों को रिलेट करके लिखना है। 5E एंड question says that does the institution of marriage continue to be sacred in Indian society? comment, ये भी मैरिज से रिलेटेड है और कंटिन्यूटी एंड चेंज एक फैक्टर है हर चीज़ में, सोशियोलॉजी में भी, सोसाइटी में भी है, हर चीज़ में आप कंटिन्यूटी चेंज, रिलीजन में भी कंटिन्यूटी चेंज आता है, फैमिली में भी आता है, मैरिज में भी आता है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 सिस्टम ऑफ कंसेप्ट, फैमिली, हाउस होल्ड एंड मैरिज, ठीक है, एंड ये देखिए लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, कंटेम्पोररी ट्रेंड्स, क्या क्या चेंजेस चल रहा है यहाँ पे मैरिज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द न्यू लेबर कोड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर इन इंडिया। सो फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 6। चलिए देखते हैं लेबर। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 6 फ्रेंड्स, वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, एंड द लास्ट सेक्शन इज आवर लेबर एंड सोसाइटी। ओके, तो अभी जो लेबर रिफॉर्म आया है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो हमें उस हिसाब से आंसर लिखना है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 6B, अकॉर्डिंग टू मिल्स एलिट्स रूल इन इंस्टीट्यूशनल टर्म्स रेदर दैन साइकोलॉजिकल टर्म्स, कमेंट, ठीक है, चैप्टर 7 से है फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स चैप्टर से आपका, ठीक है, ये देखिए पावर एलिट, ये देख रहे हो, चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, एंड द सेक्शन बी and first portion is your power elite. Then the next question is our question number 6C, that is analyze the strength and weakness of social survey method in social research, ठीक है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसको आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7A, टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, डिस्कस, ठीक है, तो ये भी फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 10 से है एंड सेक्शन बी से। चलो देखते हैं, टेक्नोलॉजी हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंस। यहाँ पे मार्क कीजिए, पर्टिकुलर जो सेक्शन है आपके सिलेबस से उसको मार्क कीजिएगा जब आप आंसर लिख रहे हो या जो क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन है देखो, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वाला पार्ट है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, यही है आपके सिलेबस में। 10 चैप्टर सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी एंड सेक्शन बी डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, पर्टिकुलर इसी को उठा के उसने वहाँ पे पेस्ट कर दिया और थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 7B, फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोसाइटी रिजेक्ट्स मैनी ऑफ द अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविज्म, कमेंट, ठीक है, कहाँ से है फ्रेंड्स, पॉजिटिविज्म, ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर 2 से, देखिए मैंने मार्क कर दिया है कि पूरा का पूरा, ये देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। ओके, सो क्वेश्चन हमारा क्या है, फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोसाइटी रिजेक्ट्स मैनी ऑफ द अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविज्म, कमेंट, ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है, स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये कहाँ से है, चैप्टर नंबर 2 एंड फ्रॉम सेक्शन सी, पॉजिटिविज्म एंड इट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 7C, and it says critically assess
द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलिनेशन। देखिए कार्ल मार्क्स, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स कार्ल मार्क्स एंड यहाँ देखिए एलिनेशन। हाउ डज मार्क्स व्यू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज एन एसेंशियल एलिमेंट इन सोशल चेंज। मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डज मार्क्स व्यू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज एन एसेंशियल एलिमेंट इन सोशल चेंज। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि मार्क्स के हिसाब से और मार्क्स के व्यू के हिसाब से सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैसे एक एसेंशियल एलिमेंट इन सोशल चेंज। गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8b, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जनवरी 9 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। 17 को आपका एग्ज़ाम था और 9 जनवरी को एक वीडियो अपलोड मैंने किया था एंड दैट वाज ऑल अबाउट पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी कहा था और ये भी कहा था कि राइटिंग कैसे। मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो ओनली 1 वीक बिफोर मैंने अपलोड किया था। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें करंट अफेयर्स एक दो टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था और पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी डिस्कस किया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सोशियोलॉजी पेपर 1 and this is examine how social movements come to an end, illustrate with examples. ठीक है, and this question is from chapter number 7. Let me show you. Chapter number 7 is your politics and society and see the last section D and this portion social movements. ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।